introducing me. So can I share the screen? Yeah, go ahead. I think the screen is visible, right? Yeah, it's visible. Okay. So yes, Suraj has already introduced me very well. So still here are some of my handles, my LinkedIn profile, my code forces, my code chef. Anybody wants to connect. And so yeah, I'm in my fourth year and I'm an expert on code forces as well as a 5-star on code chef. And I'll be interning as a software developer engineer at Red Hat from January. So this was my introduction. Let's get started with the basics of CP, or what is CP and what, why, where, and how to do the CP. So the general term for CP here is like competitive programming, or we can say sports programming, anything you like. So what is CP? मतलब CP तो actually सबको definition पता ही होगी, but still for context, किसी को अगर नहीं भी पता है तो competitive programming is kind of sports programming where there are number of problems which we have to solve in a time span, like 3 hours, 4 hours. It might be a particular duration of time, and it is generally a contest basis. Like we have to part in a competition. Likewise, so this is what is CP, and you can Google it out. You can search for the actual definition if you like. But let's get into why CP, or let's get into first of all where we can do competitive programming. Okay. So there are basically various platforms which you can try out, like Codeforces, CodeChef, HackerRank, HackerEarth, and Dare to Compete. There are around there are a lot of more as well, like AdCoder, TopCoder, and CSS. There are a lot of, you can search it out. So there is nothing like where to start with. तुम कहीं से भी start कर सकते हो. Like if you have just the basic understanding of C++ or any programming language like Python, Java, you can start with competitive programming as soon as possible. There is nothing like to wait and practice and then start competing. You can directly start. It will eventually means grow up and you'll get used to it. So this is my thinking that sometimes people used to wait and they think that I'm not good enough to start with. So होता क्या है ना, ये इस चक्कर में लोग लूप में फंस जाते हैं, like I'm not good enough, and so they don't even start early. So you just go, means you just have the basic understanding of any programming language and just start doing the problems or competitions. So what does at the stake means? होता क्या है, मतलब तुम किस में पार्टिसिपेट किस में कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से कितना बेनिफिट है या फिर क्या है. So there are various global programming events organized for competitive programming like ACM, ICPC. It just Suraj mentioned. I and Suyash was means regionalist, and then there are Google's coding competitions like CodeJam, Hashcode, Kickstart, and Facebook Hacker Cup. So this kind of competitions, what does this help is they improve your profile. Like if you get a good rank in any of this competition and if you show up that in your profile, it will eventually help you in future in if you are going for placements or somewhere. Sometimes Google's coding competitions are also helpful to get a job at Google. If you are getting good ranks in Google competitions, you might get a get a call for the interview at Google. And Facebook Hacker Cup same. There is a competition for credit shoes as well. There is a global coding challenge. It happens every year, and generally you get a chance for internship as well as job at credit shoes. The prices are also very good here. I mean, for credit shoes, it is the first prize is MacBook Pro. It is really awesome. And there is a code chef snack down. I guess on 21st also there is a round for this snack down. So definitely don't miss the chances for participating any of the any of the contest. Just don't miss it. As you might be in your second year, third year, you are having a means you might be having a great opportunities coming up in this year or maybe next year.
if you have missed some of this year. There is another Newton School Coding Challenges. It happens actually every month, and some of them are grand challenges whose prizes are also very nice. You can check that out as well. So this is the list of some of the competitions that I came up in top of my head, but there are a lot of uh, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. So on Code Forces also there are a lot of global coding events which has prize. So you can definitely try that out. So how means सबके दिमाग में एक आंसर क्वेश्चन होता है कि how should we keep doing it or how should we do CP means लोग क्या होता है जनरली स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करते टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. एट द बिगिनिंग लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है या फिर कैसे मैं प्रोग्रेस करूँ या हाउ टू ग्रो इन दिस. सो द जस्ट सिंपल आंसर इज बी कंसिस्टेंट. Whenever there is a contest, just try to participate and try to solve the problems. If in a contest you're not able to solve any problem, like the third problem, the fourth problem, you're not able to solve it, just try to solve it after the contest. Don't compare yourself with others. Like it might happen that you are beginner and the other person is having some of the background knowledge in that and he's actually doing good in that, and you start comparing yourself with him or her, like he's or how he can do that good and why I can't do that good. So this starts to happen. Actually मैंने भी feel किया है ये. So just don't compare yourself with others because in long run it won't help you anything in anything. The thing is be in a community. Try to be in a community. Don't be alone. If you're doing anything alone, starting में तो मजा आएगा भले, but soon enough you'll feel means you will start feeling it boring और तुम छोड़ दोगे. So be in a community. Other thing is find people with common interests. It is similar to be in a community, but still get some friends or make some friends who has that common interest. Otherwise what will happen, same तुम थोड़े टाइम में अगर अकेले करोगे, so you will feel kind of boring and you will leave it. So these are the main things. Another thing I forgot to write up here is keep practicing. So a lot of people ask like how to be good in competitive programming or anything. So it's just a matter of practice. You do have to practice a lot, and the long challenges are good for that in on Code Chef. Like it happens around in every month, so we can try that out as well. So it is just keep practicing. So we have discussed where we can do competitive programming and what are the major competitions and how. But let's see why we should do competitive programming or why it is good. So this is the contest of my recent. There was a contest which get me to 5 star. So you can see this first question was solved around by 2000 peoples. The second was around 1500. And at that time हुआ क्या था, ये जो गन डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉब्लम है, it was coming at the third place in the problems list. And then I started solving it. After a little bit of time, I again saw this problem list and I saw that Sardar and GCD, the third problem right now, was being solved by a lot of people. But I was at this gun distribution problem and I thought I could do it. I had that intuition that I will be able to do that. So I kept doing that problem, and eventually after I guess half or 1 hour, I was able to do it, and in the first attempt. So this is the thing which motivates you. Like the gun distribution problem was only solved by 6 people, including me, and the dopamine you feel after solving any problem is too great to feel, and the adrenaline rush you get while solving these problems and after getting an accepted all correct, it's very nice. Like how our brain works, the reward system, you all know that we do certain tasks to get some reward kind of thing. So
as I solved this particular problem, the gun distribution, it felt like I'm on another level, and it boosted my confidence too much. So this is the thing why we should do DP. Means it is not for any placements or uh, like engineering is just not for placements. Our end goal is not just placements. The thing is we should be a good problem solver. We should be having fun in whatever we are doing, right? So if you are having fun in solving problems or having this adrenaline rush before the contest, then it is great. Just do it. So you might be thinking that this is how my contest looks like. In every contest looks like solving a good number of problems and getting high rank, and always I kept growing and growing from 1 star to like currently I'm 5 stars. So directly there's an exponential graph. It's not like that. Basically these are my snaps of some of the means code chef and code forces. These are the snaps of my graphs. So you can see that I was stuck on 4 star for a long, and there was this sudden drop as well somewhere. So it felt little demotivating at that time as well. Like this, you can see the drop. I almost touched 3 star again. From getting to reach to 5 star, I almost touched 3 star, and it felt a little demotivating, or I can say frustrating. Like why I'm not able to increase my rating, or why I'm not able to grow. But this is just for short span of time. As you can see, I again started consistency from here, and you can see the growth started again. So the drop or the fall you're feeling right now in your ratings or your growth is just temporary. It will not be for permanent. So just keep consistency. Eventually you will grow. There's not no shortcut like to have an exponential growth. So this is my code chef, the snap of the code chef graph, and you can see the code forces graph as well. I was stuck to specialist for a long time. It was around 6 to 7 months, I guess, and I kept trying and trying. Once I even reached to expert, and then I again fall down very badly. You can see I even reached to, I guess, pupil, and then again I started and I kept my consistency again, and eventually I means get up again. So the main goal of showing you these graphs are just keep doing it, not the sake of rating or ranking you are getting. The thing you will get from CP will be the problem solving and the confidence. Like if you fall, you have the ability to get up again, right? So this is the thing. This is one of the graph that really motivates me. Like this person doesn't even care about his rating. You can search for this man, this rain boy on code forces. So this person started his competitive programming journey might be in 2017 or before, and initially he, I guess, means focused for rating or something like that, but eventually he's just now practicing, and he doesn't even care about his rating. He gets max to this candidate master and this, and drops back to this gray. So you can see this person doesn't care about this rating, and he's still getting good in it. So here are some my points why to do CP. Do it for that confidence, the confidence you get after solving any problem, and any contest, you get the confidence. So that confidence is pretty good, if you try it out, you'll feel that. Do it for the problem solving skills. You literally get that problem solving skills very much. Like if you do math daily, you'll find that you are getting good at that, right? So do it for that adrenaline rush you get before sitting into any contest, either it is competitive programming or it is hackathon, whatever contest it is. That adrenaline rush is pretty great to have. Otherwise your life will get boring. Do it for that satisfaction. You get that satisfaction after solving any problem. The last point is, if you like to do it, just do it. Don't come under these controversies of what is good and what is a waste of time. Nothing is a waste of time. In long run, everything you do will eventually help you out.
So just one thing, don't cheat in the contest just for the sake of ratings. Many people I've seen uh, to get to get the placements or to think they think that having good ratings on CodeChef or Codeforces will grab them a good placement in good companies, but it does not happen like that. The ratings on CodeChef and Codeforces is just a matter of numbers, and the employers or whatever company you're applying to won't uh, think you or won't compare you with that numbers. They will eventually test you out in their interviews and their online assessment. So don't go after numbers, just keep practicing and don't plagiarize. As in Three Idiots it said, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, राइट? So that's from my side. Still some of points are remaining. Like competitive programming is also useful in some of the placements. I would not say all of the placements, but some companies take it very seriously, like Google, Media.net, Code Nation. Their contest, their online assessment is tough, and they literally ask the competitive programming problems. So if you are targeting for these kind of companies, so you had to do competitive programming. But if you're targeting uh, apart from these companies, then competitive programming is not necessary, I'd say. But you should try it once, right? If आप try नहीं करोगे, then you will not know that are you good at it or you're not. So just don't come under any sentence that if someone says that competitive programming is a waste of time, then just ignore that. Okay, try it out after doing some contest or after spending some time. If you don't feel that you are good at that, you can leave it. You can try another things as well. So that was from my side. Another one more thing. Some of the contests are global level contests. Like as I said, the Google's coding competitions, has code and code jam. They are eh, means a lot of contests are global level. So the timings are according to that. So last year only, I guess the hash code was around at 12 a.m. or 1 a.m. and it was for 4 hours. So it ended at 4 a.m. So you are in a team and you are doing these competitions at night. It feels really amazing. It means the team coordination you are having. Many contests are team contest. So you literally feel that adrenaline rush with your team. You are in solving problems. You are coordinating with your team. It feels really amazing. So yeah, that's it from my side. So if you have any question, you can ask. Hello, Harish. We have some questions for you in the Yeah. chat box. So, yeah, in the Q&A section. Okay. So okay, I started CP from third semester, means my start of second year. In first year, I actually didn't know anything about programming. I was in ENTC branch, and then in my second year, I switched to computer science branch. So I'd say I started coding as well in second year, first semester. So yeah, that time I started. I didn't did any coding in my high school or like that. Hello, Harish. Sorry to interrupt you. Before Yeah. you go to next question, I would like to announce one thing. We are forwarding the attendance form for SE and T in the general chat. You can fill it, so it won't hamper your academics right now. Harish, you may continue. Sorry to interrupt you. Yeah, sure, sure. Okay. So I've been doing CP from July. That's great. Keep doing it. Harish Bhaiya, can you elaborate? So there is nothing like spending daily some time. मतलब रोज रोज करना जरूरी भी नहीं है. If you have other urgent tasks or means set some priorities. If you have assignments of college or means prioritize the things. It's not like anything is that important.
in CP. You can miss out some contest if there another thing are more in priority. So still try to do contest, and the main thing is upsolve the problems you was not able to solve. And one more thing, upsolve only those problems which are at your level, not directly jump to the last. If you are not able to solve the last problem in the contest, means if you are not if you are just able to solve one or two problems, and after the contest if you are trying to do the last problem, that does not make any sense, because it might need some advanced knowledge, or you understand, right? What I mean. So as I said, that if you are just able to solve two to three problems in the contest, try to solve the fourth problem, the fifth problem, and you will eventually learn the concepts, and eventually you will start building up the intuitions required for the contest. So solving is really helps. You have to look out for the algorithms which had required for that third, fourth, or fifth problems. Sometimes the till third problems, the problems are ad hoc, means it doesn't require any advanced algorithms. But from fourth or fifth problems, it might require some graph algorithm or some DP algorithm. So you have to look out for that as well. So language is just a way to communicate with your computer. So there is nothing like any special language or any favorite language, but still if we are confused about what to use for competitive programming, then I would recommend C++, as I use C++ for that, because there is a STL library and it is great for competitive programming. But other than that, you can even use Python or Java, it doesn't matter. Means there are a lot of red coders on Codeforces who use Java and Python as well. So it is not necessary if you are using other languages, you won't grow. It is not like that. So whatever language you are comfortable with, you can start doing. So some good books or tutorials for CP. I'll say just Google it out. Whatever you have, any means whatever doubt you have. कोई ऐसा particular resources तो नहीं मैं prefer करता, but there are a ton of resources like GFG है, YouTube है. If you follow any particular YouTuber in competitive programming or in coding, I generally prefer that as well. Like I follow Eric To. He's a Russian competitive programmer. So he actually makes a lot of tutorials on YouTube as well. There is a CP algorithm website as well for advanced algorithms, if you like. उस पे शायद I guess सारे ही algorithms mentioned है on CP algorithms. You can check that out. cpalgorithms.com I guess. एंड जस्ट गूगल करो, मतलब कोई भी डाउट आता है तो गूगल करो, फर्स्ट लिंक पे जो मिले एक बार देख लो. रीड करके समझता है तो दैट्स बेटर. इफ यू लाइक टू वीडियो ट्यूटोरियल्स, देयर आर टन्स ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स एज वेल. So you are in second year and you are finding coding very difficult. Like you just started, I guess you are in second year. So थोड़ा टाइम और दो, मतलब इतनी जल्दी एकदम डिसीजन मत ले लो. टाइप डिफिकल्ट लग रहा है, स्टार्टिंग में हर चीज डिफिकल्ट लगती है. एंड गिव सम लिटिल मोर टाइम. थोड़ा टाइम देने के बाद भी अगर नहीं लगता है, देन यू कैन ट्राई समथिंग न्यू. मीन्स कोडिंग ही इज नॉट द प्रोफाइल इन कंप्यूटर साइंस. देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. सो थोड़ा फिर भी थोड़ा टाइम देके देखो. प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो ज़रूरी रहती है. आई थिंक मतलब मैंने इसका आंसर किया होगा. अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, कमेंट कर देना. इज देयर एनी अदर order to learn programming languages for CP? Randomly भी मत जाओ बिल्कुल. As I said, you have to know the basics of any language like C++. Then you can just first of all do the basics of that language. Then you can start by solving the beginner problems on any website like Codeforces, CodeChef. Beginner से start करो, directly high level questions पे मत jump करो. If you jump to the high level questions, you will get frustrated, और मतलब तुमसे solve नहीं होगा, तो you will get demotivated.
Yes, I used to see our seniors, means my seniors, they were good at competitive programming. Means code chef पे मैं देखता था कि there are people above me and 4 star, 5 star. So I used to get motivated by that, and मीन्स मुझे दिमाग में था कि मुझे भी एक दिन बस 5 स्टार जाना है एंड बनना है, मतलब ऊपर रेटिंग अच्छी करनी है. देन आफ्टर सम टाइम जब वो फॉल्स आए, रेटिंग में ड्रॉप्स आए, देन आई रियलाइज दैट इट विल हैपन बट इवेंचुअली यू विल ग्रो. सो या हाँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर इन एनी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी, मैकेनिकल, वॉट एवर. मीन्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग देन आईटी कंपनीज में ऐसा कोई आई गेस बहुत स्पेसिफिकली कुछ कुछ कंपनीज का रहता है जस्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच या आईटी ब्रांच, बट यू कैन गेट इनटू द आईटी कंपनीज. यस, अब सॉल्व, ये इसका आंसर. प्रैक्टिस करो, अब सॉल्व करो, न्यू कंसेप्ट्स थोड़े देखो. मतलब यू विल गेट. मई में स्टार्ट किया ना, मतलब फिर भी 6-7 मंथ्स हुए. ठीक है, थर्ड थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम होने लगेंगे. जस्ट प्रैक्टिस एंड अब सॉल्व. सो इसका आंसर मैं इसलिए दूंगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहती है इट टेक्स टाइम टू बिल्ड. ओके, मतलब देखो, कोई इफ यू आर लर्निंग एनी फ्रेमवर्क और एनी न्यू लैंग्वेज, यू कैन गेट दैट स्किल इन 1 वीक और 1 मंथ मैक्स. ठीक है, तुमको वो स्किल आ जाएगा, तुमको वो फ्रेमवर्क सीख जाओगे, तुम वो लैंग्वेज सीख जाओगे. बट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल रहती है इट टेक्स टाइम, ईयर्स लग जाते, राइट? मतलब तुम्हें अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में, मतलब वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट? सो इवन इफ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट, उधर सर्टेन केसेस हो गए कि यू विल रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और उस टाइम पे you have to go in different paths, you have to see the things and by a different perspective. So ये चीजें जो रहती है, you will get it with competitive programming. This is the one way. Another thing is you can start by projects as well, but project फिर खुद से करके या फिर इंडिविजुअली तुम इजी इजी प्रोजेक्ट्स करोगे एंड जो यूट्यूब पे दिखाते हैं, and मतलब यूट्यूब का देख देख के तुम अगर प्रोजेक्ट्स बनाओगे देन इट वोंट हेल्प दैट मच. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाओ अगर, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट. Suyesh will talk about it little more. But problem solving is necessary. So you have to means increase that. Practice and solve. लगता ही है. Flow chart for CP. Everybody has a unique path, I'll say. So अपना थोड़ा एक खुद का ट्रैक बनाओ. मतलब एज आई सेड कि लैंग्वेज, पहले तो लैंग्वेज ठीक करो थोड़ी, जो भी है C++ या पाइथन बेसिक समझ लो, and then start with beginner problems on any website. Eventually you will get the concepts, and धीरे धीरे तुम ग्राफ सीखोगे. इफ यू आर इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकेंड इफ यू आर इन सेकेंड ईयर ग्राफ सीखोगे, फिर ट्री सीखोगे, उनके एल्गोरिदम्स वगैरह आएंगे धीरे धीरे. मतलब बस ग्रो, कीप ग्रोइंग, रुको मत, कहीं रुको मत बस. हाउ टू स्टडी DSA. For DSA, and if you are targeting for, like, say, placements, lead code, binary search, and GFG, these are best. Means these are specifically target for DSA. Actually competitive programming थोड़ा ad hoc type होता है. You won't require that much of DSA knowledge for that. Means थोड़ा mathematical knowledge is required for certain problems, like GCD का थोड़ा होना चाहिए, bit manipulation का थोड़ा आना चाहिए. So that's why DSA and CP is little bit different in certain cases. But if you want to specifically target for placements, you can go for lead code and GFG. There, that is very, means that is good. Interview bit as well. Okay, I guess if questions are, or if anybody has another question.
Yep. So this was all about competitive programming we had today, and now I request Suyash to carry forward and brief us about the importance of hackathons. Thank you, Harish. Thanks. Thank you so much. So hi everyone. Okay, second. Am I audible? Yeah, you're audible. Yeah. So first of all, thanks Harish for this awesome session. So the contents are very informative. So now I'll start with some hackathon things. So just a second, I'll share my screen. Um, is my screen visible now? Yes, it's visible. Yeah. So I also have a small PPT here. So the PPT will be very short. I only have some headlines and the contents. So here is my introduction. So some of you may already know me, and as earlier they have given my introduction. So we need not to spend time here. So let's go forward. So these are the content for today's session. So first we will talk about what is a hackathon and why you should participate, how will it help you, and where you can find hackathons to participate. And then I have some tips, and at the end we have some small activity if there is some time left. So before starting with this session, I have small interactive kind of thing. So what you can do, you can just open slido.com and that code is there at the bottom, or you can scan this QR code and you can show what is your current status in the participation of hackathons. So if you have already participated in some hackathons, then beginner, coder, veteran, and legend. I guess, yeah. So we will wait for 1 to 2 minutes here. So just to get some responses. Edwin, please respond over here. It will be very helpful for us to conduct further sessions for you. Okay. I'll keep this active. Do you have any questions? Okay. Yeah. Suyash, can we have yeah the same slide for a minute? Yeah. Okay. Yes. Okay. So we have some coders, some beginners. Yeah. Great. Okay. We also have some legends. That's great, guys. Okay. So we will wait around 35 to 40, and then we'll start. Okay. Okay, so that's great. You can keep that application open because I have some 1 or 2 polls here also. So we can continue that. Okay, now, yep. So 76% we have beginners. Yeah, no issue. ओके सो व्हाट इज अ हैकेथॉन देन सो जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये सुना था पहले हैकेथॉन क्या है तो पहले मुझे लग रहा है कि हैकेथॉन में मतलब कुछ हैकिंग टाइप करना होता है सो तुमने सुना हुआ एक कैप्चर द फ्लैग करके भी एक इवेंट होता है जिसमें अपने को सर्वर्स हैक करने होते हैं तो अगर किसी ने स्नोडेन एक मूवी है वो देखा होगा तो उसमें भी एक सीन है कि वो लोग सर्वर्स हैक करते हैं मुझे पहले लग रहा है कि हैकेथॉन मतलब वैसा कुछ रहता है बट टर्न्स आउट हैकेथॉन इज एक्चुअली प्रीटी इजी सो हैकेथॉन्स में कैसा होता है कि एक कंपनी होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर कुछ कॉज होता है जैसे कि एक कुछ इशू वगैरह हो गया तो उसके ऊपर कुछ उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है अपनी टीम होती है तो टीम का साइज भी कुछ अराउंड 4-6 ऐसे रहता है तो वो टीम को अपने को एक स्मॉल एप्लीकेशन या फिर एक प्रोडक्ट उनको दिखाना होता है जो जजेस होते हैं हैकेथॉन्स के और वो फिर अपने को जज करते हैं कि क्या है इसमें मतलब तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो वगैरह वैसा सब कुछ और एट द एंड फिर जो भी विनर्स होते हैं उनको प्राइजेस मिलते हैं तो हैकेथॉन्स में कैसा होता है कि कभी कभी जो हैकेथॉन्स होते हैं वो सिंगल डे के भी होते हैं कभी कभी 2 to 3 डेज के भी होते हैं तो उसमें अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है तो मोस्टली सारे हैकेथॉन्स ऑनलाइन ही चल रहे
पर जब सब कुछ मतलब नॉर्मल हो जाएगा तो पहले कैसे हैकाथॉन्स होने के तो वहां पे जाके अपन पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें कैसा होता है कि उधर ही रहना होता है पूरा टाइम, मतलब रात भर उधर ही रहो, खाओ, उधर ही काम करना होता है। तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, मतलब जितने भी टीममेट्स होते हैं, तुम साथ में मिलकर काम कर सकते हो। तो वो भी बहुत एक मस्त एक्सपीरियंस होता है। और वो एक एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सो दैट यू कैन लर्न एंड ग्रो मोर विथ योर फ्रेंड्स टुगेदर। ओके, सो ये तो हो गया हैकेथॉन क्या होता है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड व्हाई टू पार्टिसिपेट इन हैकेथॉन्स। ओके, सो अभी कुछ चीज है, तो कोई अगर सामने वाला वो बोल रहा है कि ये करो अच्छा है, तो अपने को करना नहीं है, अपने को पहले सोचना है कि क्यों करें हम लोग इसको। तो सबसे पहले तो पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो वैसे अभी अपने को फ्रंट एंड या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन कुछ डेवलप करना आता है, तो अपन मोस्टली क्या करते हैं कि कुछ एक छोटा सा ऐप ना कि अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि यार ये मैंने बनाया, या फिर कुछ टीचर वगैरह को दिखाते हैं। तो वो अच्छा है, पर उसमें होता कैसा है कि अपना जो सर्कल होता है जहाँ पे अपन दिखा रहे हैं, तो वो बहुत छोटा होता है। तो जब अपन हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक अपन एक बिगर स्टेज पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे जो बाकी के जो भी लोग हैं वो भी अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फील होता है। और एक और चीज ये है कि जो हैकेथॉन में जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज अभी तुमको सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करना आता है, पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका जो डिमांड है वो बहुत है, मतलब उसको बहुत कुछ आना चाहिए, उसमें फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा, इंटरेक्शन करना है, एपीआई बनाने हैं। तो वहां पे जो भी तुम्हारे पास जो भी टाइम स्पेन होगा, उसमें तुमको वो सीखना है और तब उसको डेवलप करना है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि तुम सीखते सीखते कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अपन जो अपने टीममेट्स है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो उसका फायदा क्या है कि जैसे अभी अपन बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो वहां पे कैसा होता है कि एक जो प्रोडक्ट होता है, सपोज अभी अमेजोन, गूगल वगैरह जो भी बड़ी कंपनी है, तो अभी गूगल पे है या फिर अमेजोन एलेक्सा है, तो यहाँ पे कैसा होता है हर एक फीचर के लिए एक अलग अलग टीम होती है। तो टीम में भी अराउंड कुछ 6 से 7 लोग होते हैं और वो लोग एक फीचर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सेम जैसे हैकेथॉन में तुम्हारी 4 से 6 लोग की टीम होगी, उधर भी वैसा ही होता है। तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस होता है कि जो तुम्हारे टीममेट्स हैं उनके साथ तुम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे इफिशिएंटली काम करते हो, वो सब प्रैक्टिस होता है। और अभी हैकेथॉन से तो प्राइजेस और वो सब तो आ गई। तो हैकेथॉन्स की प्राइजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हैकेथॉन वाले अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके प्राइस भी वैसे होते हैं, मतलब कभी भी 1 लाख 2 लाख के भी प्राइजेस होते हैं। और मोस्टली कैसा होता है कि अभी तो ऑनलाइन है, पर जब हैकेथॉन्स वहां पे होते फिजिकली, मतलब जहाँ पे सेंटर्स है उनके, तो वहां पे ऐसे जो शर्ट्स वगैरह मिलते हैं वो उधर ही मिलते हैं, फिर कॉफी कप होता है, फिर जो लैपटॉप के स्टिकर्स वगैरह वो सब भी मिलता है। उसको स्वैग्स बोलते हैं, तो वो भी मिलेगा हैकेथॉन्स में। और एट द एंड इंटर्नशिप एंड फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज भी होती है। तो अभी कैसा हो गया है कि अभी जैसे आप बहुत लोग ने सुना रहेगा कि जो इंटरव्यूज होते हैं उसके पहले एक हैकेथॉन राउंड भी अभी होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जैसे अपन ने पहले देखा कि सीटी इम्पोर्टेंट है, तो लोग क्या करते हैं ना कि अगर कोई भी टेस्ट है, तो वो बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप्स रहते हैं, वहां पे पहले आंसर आ जाते हैं। तो वहां से बच्चे आंसर कॉपी कर लेते, और फिर जो लोग ने एक्चुअली मेहनत करके सॉल्व किया होता है, तो उनसे पहले उनको आंसर मिल जाता है, तो फिर वो बहुत अनफेयर चीज हो जाती है। तो अभी कंपनीज क्या कर रहे हैं कि वो भी करते हैं, और उसके साथ साथ एक हैकेथॉन राउंड भी होता है। तो हैकेथॉन राउंड में क्या होता है कि तुमको एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, कुछ ऐसा वेबसाइट बनाओ या फिर एंड्रॉइड ऐप बनाओ या फिर ऐसा कुछ भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करो। तो उसमें तुम कैसा थिंकिंग प्रोसेस क्या है तुम्हारा, वो सब तुमको उधर लिख के सबमिट करना होता है, और फिर वो जो तुम्हारा एक्चुअल कोड है वो भी सबमिट करना होता है। तो अभी ये भी स्टार्ट होने वाला है। तो फिर तुम सीपी के साथ साथ ये भी करो, ताकि अभी जो मतलब अभी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर जो भी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि 2-3 साल बाद ऐसा ही मोस्टली हायरिंग प्रोसेस ऐसी होने वाली है। तो उसमें भी ध्यान देना। उसके बाद अभी ओके, तो अभी ये सब तो ठीक है, मतलब हैकेथॉन क्या है, क्यों है, वो सब ठीक है, पर अभी ये अपने को कैसे हेल्प करेगा। क्योंकि अभी मतलब ये सब तो ठीक है, पर एक्चुअली अपने को हेल्प कैसे होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड में। तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो या अभी कैसा होता है कि सपोज अभी तुम्हारा थर्ड ईयर का कुछ प्रोजेक्ट है, फिर सेकेंड ईयर का कुछ प्रोजेक्ट है, तो उसमें कैसा होता है ना कि तुमको मतलब वो प्रोजेक्ट भी ऐसा होता है कि तुम सोच के ऐसा उसको चूज ही ऐसा करते हो कि यार ये देखो मुझे ये करना आता है, तो मैं इसमें ही प्रोजेक्ट करूंगा।
तो कैसा होगा कि वो प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा। तो अभी उसमें क्या होता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम उसमें कुछ नया नहीं सीख रहे ना। तो हैकेथॉन्स में कैसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज तुम्हारा टीममेट है, और वो जो टीममेट है उसने बोला कि भाई तू ये करके दे, पर तुमको आता नहीं वो। तो अभी भाई ने तो बोला है, तो अपन भाई को तो मना नहीं कर सकते ना, तो करना पड़ेगा अभी। तो फिर तुम ऑनलाइन सर्च करोगे कैसा करना है, फिर तो बहुत सारे जो वेबसाइट है, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, या फिर मीडियम के जो डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉग्स हो गए, वो तुमको रीड करना पड़ेगा। फिर तुमको समझा कि अच्छा इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली पहले हुआ था हमारे साथ। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, तो हम लोग ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं और हरीश भी एक ही टीम में थे। तो तब अभी सेकेंड ईयर में अपने को जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग, वो सब नहीं आता। तो तब हम लोग का जो प्रोजेक्ट था, तब उसमें हमको ये था उसका यूज, क्योंकि क्या था, जो फ्रंट एंड और बैक एंड था ना, उसका जो इंटरेक्शन था वो बहुत स्लो हो रहा था, क्योंकि वो जो सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन रहता है, तो उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो फिर मैं ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया कि यार कैसे कर सकते हैं। तो एट द एंड हम लोग ने जो मल्टी प्रोग्रामिंग वाला जो फीचर्स है वो सारे इम्प्लीमेंट किए, और जो जजेस थे उनको भी दिखाए। तो वो लोग भी बहुत इंप्रेस हो गए कि यार इतने मतलब सेकेंड ईयर या फिर हाँ सेकेंड ईयर था, हाँ सेकेंड ईयर के बच्चे भाई ये बड़े बड़ी चीजें कर रहे हैं। तो वो भी अच्छा लगता है, तो वो भी तुम ऐसा चीजें कर सकते हो। फिर दूसरा हो गया कि पार्टिसिपेटिंग एट बिगर लेवल। तो ये जो भी हैकेथॉन्स होते हैं, तो बहुत सारे हैकेथॉन्स कैसा होता है कि कभी कभी स्मॉल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि अपने कॉलेज का हैकेथॉन हो गया, या फिर कोई सिटी का वगैरह का जो होता है। सपोज अभी बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं जो ऐसे दो तीन कॉलेज एक साथ लेते हैं। तो ऐसे कुछ हैकेथॉन्स होते हैं जो ग्लोबल स्केल पे भी होते हैं। तो उसमें अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे, और वहां पे अगर तुम्हारा रैंकिंग या फिर जो भी तुम्हारा रैंक है वो अच्छा आया, और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अच्छा था, क्योंकि उसमें भी बहुत ये होता है कि मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसा नहीं होता है। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो लोग उसको पूरा स्टडी करते कि अच्छा इसका जो फ्रंट एंड था बहुत अच्छा था, इसने जो कोड लिखा एकदम मस्त लिखा है, इसका एकदम मेंटेनेबल कोड है, तो उस पे भी तुमको कुछ प्राइजेस वगैरह मिलते। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया ग्रोइंग कनेक्शन। अभी क्या होता है कि जो हैकेथॉन्स होते हैं उसमें अभी तुम्हारी एक टीम हो गई, अभी इस साइड में एक और टीम रहेगी। तो तुम लोग उसमें फिर एक दूसरे से बात कर सकते हो कि अच्छा तुम कौन से कॉलेज से हो, तुम मतलब तुम्हारे इसमें कैसा होता है, क्या है वगैरह। फिर ऐसा तुम्हारा जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी बहुत इंक्रीज होता है। तो जो हैकेथॉन्स है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हो गया रिकग्निशन। तो अभी मतलब इस यहाँ पे तो सबको चाहिए ना कि मेरा नाम थोड़ा बड़ा हो, लोग मतलब जो मेरा फर्स्ट नेम है उससे मुझे पहचाने कि अरे भाई ये आ रहा, देखो देखो भाई ऐसा बहुत बड़ा बंदा है। तो उसके लिए फिर तुमको अगर जो सीपी हो गया वो तो एक नंबर क्लास है, क्योंकि उसमें कैसा होता है कि सीपी में तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, और यहाँ पे भी तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने ही होते हैं। बस यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे अगर तुम जीत गए ना, तो तुम्हारे टीम का भी नाम साथ में आता है। तो तुम क्या कर सकते हो, वही टीम को आगे भी लेके आगे हैकेथॉन्स में भी जा सकते हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिकग्निशन हो जाता है। उसके बाद हो गया कि हाँ इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होता है, कि देखो अभी इंटरव्यू में कैसा होता है कि हायरिंग मैनेजर एक राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हायरिंग मैनेजर है ना, वो तुमको पूछता है कि अच्छा तुमने क्या इंटर्नशिप की है, तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स में किया, क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर तुमने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि तुम्हारे पास एक एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है जो कहीं पे होस्टेड है, जो लोगों ने यूज भी किया है, और जो मतलब ऐसा है कि हाँ मतलब ये एक वर्किंग कंडीशन में है, और तुम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि तुमने उस पे वर्क भी किया था। तो और हैकेथॉन्स में जैसे मैंने वो बोला कि टीम होती है, तो जो हायरिंग में मैनेजर है वो ये भी चेक करते हैं कि अच्छा ये बंदा टीम में कैसे काम करता है, कि मतलब इससे साथ में कैसे काम कर सकता है ये। तो वो भी वहां पे जज होता है। तो हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना इसके लिए भी बहुत अच्छा है। और तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो तो अच्छा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हैकेथॉन भी मतलब ऐसा होता है कि वो एज अ प्रोजेक्ट ही तुम ऐड कर सकते हो कि ये प्रोजेक्ट मैंने हैकेथॉन में बनाया था। और स्टडिंग अब्रोड का कैसा होता है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ऐसा होता है कि कुछ फेलोशिप या मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर तुम लोग हैकेथॉन्स में अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा, तो तुम वो फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और वो फेलोशिप में कैसा होता है कि वहाँ पे मतलब बाकी के कंट्रीज के भी लोग रहते हैं उसमें। तो तुम साथ में मिलके कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो। तो वो जो भी मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है वो भी देखती है कि अच्छा ये जो टीम है बहुत अच्छी काम कर रही है, तो वो तुमको कुछ सपोर्ट भी
करेगी तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, अगर तुम हायर स्टडीज में जा रहे हो तो। ओके, अभी ये सब तो ठीक हो गया कि हैकाथॉन्स क्या है वगैरह वगैरह, पर अभी हैकाथॉन्स को ढूंढना का है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह है, बस तुमको ध्यान से देखने के अच्छा ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो आगे अपन देखेंगे कि ओके ये सारे जो वेबसाइट्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जितने भी हैकेथॉन्स होते हैं, तो अभी जो फर्स्ट एड डे फोलियो, तो जो अभी स्मॉल कॉलेजेस जो होते हैं तो वो यहाँ पे होस्ट करते हैं। तो अगर तुम्हारा प्लान ऐसा है कि कोई एक कॉलेज के हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने का, तो पहले दो जो है वहां पे तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तो डेव पोस्ट जो है ना वहां पे बाहर के कॉलेज भी डालते हैं, बाहर के इन द सेंस मतलब इंडिया के बाहर के जो है वहाँ वो डालते हैं। वहां पे ब्लॉकचेन, एआईएमएल, ये सब के हैकेथॉन्स बहुत होते हैं डेव पोस्ट पे। अभी हो गया मेजर लीग हैकिंग, तो मेजर लीग हैकिंग बहुत मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनके सिर्फ हैकेथॉन ही नहीं होते, उनके बहुत सारे अलग अलग सेशन भी होते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि कुछ सेशंस में जो एक्चुअली अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो उनके जो फाउंडर है वो लोग वहां पे आके बताते हैं कि उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या मतलब उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्या फेस किए, ये सब भी होता है। और फिर डेयर टू कम्पीट हो गया, डेयर टू कम्पीट में भी जो मोस्टली हैकेथॉन्स होते हैं ना वो कॉलेज लेवल के ही होते हैं। और बस डेयर टू कम्पीट में ऐसा है कि तुमको कभी हैकेथॉन्स के लिए पे भी करना पड़ सकता है। तो वो बस एक बार देख लेना कि तुम जितना पे कर रहे हो और उसका जितना रिटर्न है वो क्या है उसका रेशो। बाकी हो गया हैकर अर्थ। तो हैकर अर्थ में फायदा क्या होता है कि हैकर अर्थ के जो मोस्टली कॉम्पिटिशन होते हैं वो कैसे होते हैं कि कोई एक कंपनी उसका ऑर्गेनाइज करती है, और जो उसके हैकेथॉन्स के जो विनर्स होंगे उनका फिर इंटरव्यू होता है, और फिर उनको वो इंटर्नशिप या फिर जो फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करते हैं। तो हैकर अर्थ उसके लिए भी अच्छा है। अगर तुम अभी सेकेंड ईयर में हो तो हैकर अर्थ की जो हैकेथॉन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि तुम अभी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फिर। और जो थर्ड ईयर में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो जो फुल टाइम रोल्स होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हो गया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। अभी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो है ना वो मतलब इंडिया का बहुत अच्छा हैकेथॉन है। उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि जो अपन एक्चुअली रोज फेस करते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें होते हैं। और उसका फायदा एक और है, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा था तो जो कंपनी या फिर जो कंपनी नहीं मतलब वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो लोग तुमको फंडिंग भी दे सकते हैं। अगर मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और उनको लगा कि अच्छा ये अपन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो तुमको फंड करेंगे उसको डेवलप करने के लिए। तो अगर तुम्हारा स्टार्टअप का कुछ है, मतलब यार मुझे खुद का कुछ क्रिएट करना है, मतलब ये कंपनी वगैरह तो सब ठीक है पर खुद का भी कुछ होना चाहिए ना, तो वो अगर तुम्हारा प्लान है तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में तुम वैसे वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें डीआरडीओ जो है ना वो मोस्टली फंडिंग करता है, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो हाँ अभी ये सब तो हो गया, पर अभी जो बहुत सारे जो अभी हैकेथॉन्स है या फिर जो भी कम्युनिटीज है उनके जो मेजर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो स्लैक, डिस्कॉर्ड होता है। तो स्लैक पे कैसा होता है कि स्लैक और डिस्कॉर्ड मोस्टली सेम ही है, बस स्लैक में ना थोड़ा सा कॉर्पोरेट फील आती है। तो वो इतना कुछ लोग अभी इतना यूज नहीं करते, पर डिस्कॉर्ड अभी बहुत यूज होता है। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने बताया ना, इसमें पॉइंटर कैसे आता है, ओके ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने बताया तो इनका सबका स्लैक भी और डिस्कॉर्ड भी है। ये जो यहाँ पे लिंक्स है वहां पे भी उनका लिंक हो जाएगा नीचे, तो तुम उसमें भी ऐड हो जाओ। उसके बाद हो गया ट्विटर और लिंक्डइन। तो ट्विटर पे कुछ ऐसे बॉट्स होते हैं जो ऐसा हैशटैग हैकेथॉन को रिट्वीट करते हैं, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि तुमको नोटिफिकेशन भी आएगा कि कुछ हैकेथॉन है न्यू, तो तुम वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और लिंक्डइन तो मतलब अभी अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो ऐसा हो सकता है कि तुमको ज्यादा आइडिया नहीं हो, पर मतलब होगा आइडिया, क्योंकि अभी मतलब लिटरली 11 12 के बच्चे भी लिंक्डइन पे वो लोग डाल रहे बोल रहे मेरा जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, ये सब भी चल रहा है अभी। तो जो लिंक्डइन है वो भी बहुत काम की चीज है, तो वहां पे भी थोड़ा एक्टिव रहो। जो जो भी तुम हैकेथॉन में कर रहे हो वहां पे पोस्ट करते रहो। और अगर मतलब जो कॉलेज लेवल के हैकेथॉन्स होते हैं तो उनकी जो टीम होती है वो लिंक्डइन पे भी हैशटैग कर, उनका कुछ तो हैशटैग रहता है वहां पे भी ये करते हैं, तो उसको भी फॉलो कर लेना। उसके बाद या तो एट द एंड थोड़ा टिप्स और सजेशन। तो मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर से हैकेथॉन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हरीश और मैं भी बहुत सारे टीम में थे। और मैंने लास्ट ईयर एक हैकेथॉन को मैनेज भी किया था, वो
TSC वाव करके एक था, तो वो एक इंटरनेशनल लेवल हैकेथॉन थी, तो उसमें फिर मैं मैनेजमेंट टीम में था। उसके बाद ये है टिप्स। तो मेन जो है ना, तुमको तो बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि तुम हो और तुम्हारा कोई तो भी फ्रेंड है और तुम साथ में मिलके कोई तो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अभी आधा कोड तुम्हारे इसमें, आधा कोड उसमें, तो अभी इशू क्या होगा कि यार उसने कुछ तो कोड लिखा है और तुमको वो इधर ऐड करना है, तो तुम फिर उधर से कॉपी करके यहाँ पे डालोगे, या फिर उसने कुछ तो एक अलग ही वेब पेज पे चेंजेस करके रखे और तुम फिर उधर कॉपी कर रहे हो, फिर ये गया। तो इसका जो इश्यू है ना, तो ये अपने को हैकेथॉन्स के टाइम पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हैकेथॉन में क्या होता है कि कुछ एक शॉर्ट टाइम स्पैन होता है, कुछ 1 दिन का 2 दिन का, उसमें तुमको करना है। अभी उसमें भी तुम अगर कोड को इधर उधर करने में झोल कर रहे हो तो फिर इश्यू हो जाएगा, तो वो नहीं करना है अपने को। तो हैकेथॉन के पहले ही एक एक गिटहब पे एक स्मॉल कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट कर लेने का तुम्हारी टीम का, और उसमें एक जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है उसका रिपो बना के उसमें कमिट्स पुश करने के। तो इससे फायदा क्या होता है, जो एट द एंड जो जो जजेस होते हैं, उनको अगर तुमने बोला कि हमने ये सारा ट्रैकिंग वगैरह यूज किया था, तो वो भी इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा इनको ये भी आता है, मतलब इनको जो वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उसका भी आइडिया है, तो वो भी एक एडेड बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हो गया डाइवर्सिफाई योर टीम। अभी डाइवर्सिफाई टीम का मीनिंग क्या है कि ऐसा हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर अपने को हैकेथॉन में जीतना है तो एक फ्रंट एंड में बंदा अच्छा होना चाहिए, एक बैकएंड में अच्छा होना चाहिए, तो उसकी कुछ जरूरत नहीं है। अभी सोचो अगर 4 लोग की टीम है, उसमें भी तुम सोच रहे हो कि नहीं सबको सब आना चाहिए, तो वैसा तो होता नहीं मोस्टली। तो तुम क्या कर सकते हो, 2 लोग को एक्चुअल जो कोडिंग अच्छा आता है तो वो कर सकते हैं, बाकी के जो हो गए वो पीपीटी हो गया, स्पीकिंग वगैरह हो गया, क्योंकि कैसा होता है कि अभी ऑनलाइन है तो अभी पीपीटी सबमिट करना होता है। जब एक्चुअल वहां पे होता है ना, तो पीपीटी के साथ साथ उधर जो जजेस होते हैं उनको प्रोजेक्ट प्रेजेंट भी करना होता है। तो प्रेजेंट के टाइम पे जो कोडिंग लोग होते हैं मोस्टली थोड़े शाय होते हैं, तो उनका ऐसा रहता है यार देखो मुझे तो ये आता है, तुम ही देख लो बात क्या करना है। तो उसमें कैसा होता है ना, कोई तो एक अच्छा होना चाहिए जो तुम्हारा जो आइडिया है वो अच्छे से कन्वे कर पाए, तो उसमें भी टीम अच्छी होनी चाहिए। और एक और है जो गर्ल्स होते हैं, तो कुछ हैकेथॉन्स ऐसे स्पेसिफिक होते हैं तो वहां पे सिर्फ गर्ल्स टीम्स होती है अलाउड, तो जो गर्ल्स है वो वहां पे पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वहां पे कैसा होता है बेनिफिट होता है और तुमको अच्छा भी एक होता है कि सब सेम है तो तुम साथ में मिलके कर सकते हो। और जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो गया, तो उसमें कैसा होता है कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स कंपलसरी होते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि 2 के मतलब 2 के ऊपर जितने भी गर्ल्स होंगे तुमको प्लस 60 पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ तो है। तो वो भी देख लेना। तो टीम ऐसा मत करना कि यार देखो 1 लाख का प्राइस है, 4 है टीम की साइज पर, नहीं हम सिर्फ 2 ही अच्छे हैं और 50-50 कर लेंगे। तो उससे क्या होता है ना, तुम्हारे जीतने के चांस भी उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा टीम होगी ना, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो भी उतना अच्छा होता है, मतलब वो बहुत लोग सोच के उसको करते हैं, तो वो उस पर ध्यान देना। अभी फोकस ऑन लर्निंग में क्या बोल रहा हूँ कि अभी ऐसे नहीं कि तुम्हारा पहले हैकेथॉन है और तुम जाके बोलो मैं जीत के आऊंगा डायरेक्ट, तो उसमें ना थोड़ा चांसेस कैसे कम होते हैं, क्योंकि पहले हैकेथॉन है तो तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो तुम ऐसा भी हो सकता है ना कि एकदम तुम ऐसा फुल ऐसा काम कर रहे हो और तुमको ध्यान ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर एट द एंड होता है कि अरे ये तुमने जो किया है वो तो करना ही नहीं था, कुछ और ही बन गया। तो ऐसा बहुत बार होता है, तो उसमें फिर इतना लोड नहीं लेने कि यार मुझे जीतना ही था ये वगैरह नहीं। उसमें तुम सीखो कि तुमने ये फीचर था, तुमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, तुम लोग साथ में कैसे काम कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हो गया कि कीप ट्रैक ऑफ टाइम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हैकेथॉन्स होते हैं ना वो 1-2 दिन के होते हैं, और अपन क्या करते हैं, अपन एक ही इसमें बहुत टाइम करते हैं, मुझे फ्रंट एंड अच्छा आता है तो मैं ऐसा यूआई एकदम मस्त बनाऊंगा, ऐसा एनिमेशन वगैरह। तो उनको ना एनिमेशन ठीक है वैसे, मतलब अगर हाँ वो हैकेथॉन कैसे है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर वो हैकेथॉन का मेन एम कुछ एआईएमएल का वगैरह होगा, या फिर ब्लॉकचेन वगैरह से कुछ हैकेथॉन है, या फिर कुछ और ही है मतलब, और तुम उस पे एचटीएमएल की चीजें मस्त कर रहे हो, तो वो ज्यादा उधर बेनिफिशियल नहीं है। तो उससे अच्छा जो तुमको उधर शोकेस करना है, मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्ट है उस पे ज्यादा काम करो, ताकि तो जो जजेस है वो एक्चुअली देखने लगे अच्छा इसने ये कैसे किया है, ना कि तुम्हारा इंटरफेस कैसा है वगैरह। तो वो भी देख लेना। उसके बाद लर्न बेसिक एचटीएमएल सीएसएस। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ताकि बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं उसमें कैसा होता है कि तुमको जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसका एक डेमो टाइप शोकेस करना होता है। तो डेमो में अभी अगर तुम लोग का प्रोजेक्ट अगर
पाइथन में है, तो पाइथन में पाएटो नहीं क्या था वो, एक टीके इंटर वो भी एक है, और पाई क्यूटी भी है, तो वो भी सीख लेना अगर तुम पाइथन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो। और अगर तुम्हारा नोड जावास्क्रिप्ट ऐसे सब कुछ है तो एचटीएमएल वगैरह देख लेना था, क्योंकि तुमको फ्रंट एंड तो लगने ही वाला है वैसे भी उधर दिखाने के लिए। और अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में तो वो तो पूरा पैकेज, उसमें कुछ फ्रंट एंड बैक एंड करना पड़ता नहीं है, तो वो एंड्रॉयड अगर तुमको अच्छे से आता है तो हो गया फिर तो। दूसरा हो गया कि डिजाइन फर्स्ट अप्रोच। तो अभी डिजाइन फर्स्ट अप्रोच का मीनिंग क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अपन सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये चाहिए, और डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब तू अपन बोलते हैं कि तू बैकएंड पे काम करेगा, तू ये कर, मैं ये करता हूँ और काम शुरू। तो उससे होता क्या है ना कि तुम लोग एकदम फुल फॉर्म में काम करते हो, फिर तुमको ऐसे 2-3 घंटे बस समझता है कि अरे कुछ ट्रैक ही नहीं है, कुछ ये वो बंदा कुछ और ही करने लगा, अपन कुछ और ही कर रहे हैं, वैसा नहीं करना। उससे पहले क्या कर लो कि एक प्रॉपर ये कर लो। अच्छा, सबसे पहले मेरा फ्रंट एंड ऐसा होगा, तो एक फिग्मा करके टूल है, वहां पे तुम लोग तुम्हारा यूआई कैसे दिखेगा वो एक बार ये कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, उसे तुम्हारा जो यूजर है, जो एक्चुअल यूजर जो प्रोडक्ट यूज करने वाला है, वो कैसे तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो उसको क्या क्या स्क्रीन दिखने वाली है, वो क्या क्या ऑप्शन उधर क्लिक कर सकता है, इसका एक फ्लो चार्ट तुम क्रिएट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो पूरी टीम है ना उसका ट्रैक रहता है कि अच्छा इसके बाद मुझे ये करना है। नहीं तो कुछ ऐसा एक ये होता है ना कि कभी कभी एक सेंटर, एक ये होता है मेन जो आदमी बोलते हैं अपन उसको, वो बोलते हैं कि भाई तू ये कर, तू ये कर, फिर वो लोग का तो हो गया, फिर वो लोग बोलते हैं भाई अभी क्या करना है। तो उसमें क्या होता है कि सब जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, फिर वो बोलता है यार तू तू जो करना है वो कर ले। तो वो सब नहीं करना है, पहले ही प्लान करके रखो कौन क्या करने वाला है, और फिर ये भी ट्रैक रखो कि कौन क्या कर भी रहा है, और मतलब वो एक्चुअल में वो बंदा कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हैकेथॉन में बहुत बार क्या होता है कि ऐसा भी स्टेज आता है कि यार मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मैं क्यों करूँ। तो ये भी होता है, तो अपने को वैसा सब कुछ नहीं करना है, पहले ही ट्रैक कर लो कौन क्या करने वाला है और उस हिसाब से करो। तो वो एक कैसा होता है कि पूरी टीम के लिए अच्छा होता है वो। तो ये तो हो गई टिप्स, इसमें एक्चुअली बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं। तो अगर तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली अभी अगले वीक में थोड़ा सबमिशन भी है, तो ये मैं पूरा नहीं कर पाया ये, तो मैं एक अच्छा सा डॉक ये करूंगा क्रिएट, और तुमको उसका लिंक भेज दूंगा, उसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कहाँ पे क्या क्या ज्वाइन करना है वो सब भी भेज दूंगा। तो ये तो हो गया। ओके, तो अब एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं अपन, ताकि मुझे भी समझे कि लोगों को क्या क्या आया, मतलब क्या क्या आता है, कैसे है, पसंद है। ओके, तो ये जो है ना, ये पोल ऐसा है कि तुमको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब तुम्हारा प्रेफरेबल है, मतलब अगर कोई हैकाथॉन का स्टेटमेंट है तो मैं पहले इसमें स्टार्ट करूंगा ऐसा। तो इसमें भी अपन कुछ अराउंड 40 रिस्पॉन्स के लिए रुकते, फिर आगे बढ़ते। तो थोड़ा पानी पी लो यार। ओके, अब सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट। सही है। वैसे सी प्लस प्लस में ना हैकेथॉन में थोड़ा सा एक इशू आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें फ्रंट एंड के जो लाइब्रेरीज है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मतलब तुमको अगर कुछ ऐसा ये करना है कि कुछ बटन्स हो, इनपुट लेबल हो वगैरह, तो वो सब कुछ क्रिएट करने में थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है, अगर हैकेथॉन के पर्सपेक्टिव में देखे तो। बाकी अगर कोडिंग फंडामेंटल्स में देखना है तो सी प्लस प्लस तो एकदम टॉप लेवल पे आता है। उसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट देखे तो जावास्क्रिप्ट में फायदा क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, वो फ्रंट एंड और बैक एंड में सेम रहता है। तो फ्रंट एंड में अगर तुम्हारा कुछ फंक्शन, अगर तुम कुछ सपोज एक फोन नंबर को चेक कर रहे हो कि फोन नंबर वैलिड है कि नहीं, तो वही सेम फंक्शन कॉपी करके तुम बैक एंड में भी यूज कर सकते हो। तो उसका जो नोड एनवायरनमेंट होता है उसमें, तो वो तो हो गया। और पाइथन हो गया। तो यस, पाइथन में जो बेनिफिट तुमको आएगा, तो उसमें कैसा होता है कि अगर सपोज AIML वाले जो होते हैं मोस्टली जो हैकेथॉन्स होते हैं, उसमें तो तुमको पाइथन ही यूज करना होता है, प्रेफरेबली पाइथन या R भी यूज कर सकते हो तुम लोग। तो वो वहां पे हो गया। और जेंगो फ्लास्क करके जो फ्रेमवर्क है, उसमें तुम लोग जो अभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्रंट एंड कोई और बंदा कर रहा है, या फिर बैक एंड कोई और कर रहा है, या फिर अगर तुम अभी सेकेंड ईयर में हो ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको समझ नहीं आ रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फ्रंट एंड में क्या होता है ना, जो वेबसाइट अपने को दिख रही है वो तो फ्रंट एंड हो गई, और जो सर्वर, जो मतलब जो चीज जहाँ पे स्टोर हो रहा है एक्चुअल चीज, या फिर जहाँ पे कंप्यूटेशन हो रहे हैं पीछे, तो वो बैक एंड होता है। तो उसके अभी ये तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना, क्योंकि फ्रंट एंड अपने फोन में और वो तो उधर किधर तो भी होता है। तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो रेस्ट एपीआई के थ्रू होता है। तो अभी ये रेस्ट तो एक अलग ही चीज है, तो एपीआई के थ्रू होता है।
उसमें बहुत सारे अलग अलग एपीआई आए, अभी पहले रेस्ट था, अभी ग्राफक्यूएल चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे एपीआई होते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है, बहुत सारे इसमें रस्ट में भी है, तो तुम इसमें भी यूज कर सकते हो। और हाँ, अभी पाइथन अगर तुम लोग यूज करोगे ना, तो पाइथन में कैसा होता है कि जो बैकएंड होता है, तो तुम एक्चुअली लिख तो सिर्फ बैकएंड का कोड ही लिख रहे हो, और जो तुम्हारा क्लाइंट होता है ना, जो फ्रंट एंड है, तो वो जब भी वो यूआरएल को हिट करेगा या फिर तुम्हारा पेज विजिट करता है, तो जो एचटीएमएल का जो भी चीजें होती है वो पहले बैकएंड पे रेंडर होती है, और फिर वहां से अपन सिर्फ उसको एचटीएमएल फाइल आगे भेजते हैं। तो ये चीजें होती है। तो अगर तुमको ऐसा कुछ चाहिए कि सिक्योर हो एकदम, मतलब तुम्हारा जो डेटा है वो बैकएंड पे बहुत अच्छा रहे, तो तुम फ्लास्क या फिर जेंगो ऐसी चीजें यूज कर सकते हो। ओके, सो मोस्टली तो अभी अपने को दिख रहा है कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ओके, ये सब चीजें। हाँ हाँ, एक और चीज रहेगी। अगर तुम लोग का मतलब ऐसा कुछ है कि वो हैकेथॉन में बोल रहे हैं कि तुमको एक फ्रंट एंड स्पेसिफिक कुछ चाहिए, मतलब उसमें ऐसा मस्त ऐसा यूआई वगैरह हो, तो सीएसएस तो यूज करना अच्छा ही है, पर जैसे बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ऐसे कुछ अलग अलग सीएसएस के कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं, एक्सटेंशन नहीं बोलूंगा मैं उसको, क्या लाइब्रेरीज बोल सकते हैं, तो लाइब्रेरीज होते हैं, तो वो अगर तुम यूज करोगे ना, तो हैकेथॉन में तो ऑलरेडी टाइम कम रहता है, तो पूरा खुद से बनाने से अच्छा वहां से ही तुम लोग जल्दी, बटन का क्लास हो गया या फिर कुछ हेडर नेविगेशन मेन्यू, वो जल्दी जल्दी बन जाता है, तो वो उधर बेनिफिशियल हो जाता है, तो तुम्हारा वो एक्स्ट्रा जो टाइम है वो तुम उधर सेव कर सकते हैं। तो ओके, ये तो हो गया। हाँ, जावा भी बहुत सही है अगर तुमको ऐसे कुछ एप्लीकेशन बनाने, वहां पे सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, तो वहां पे तुम लोग जावा को भी देख सकते हो। तो जावा में कैसा होता है ना, जावा में थोड़ा कोड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, मतलब एक ही चीज, छोटी चीज करने के लिए बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कैसा होता है ना, एक तुम्हारा जो बैकएंड होता है और वो फ्रंट एंड होता है, और बीच में एक बिजनेस लेयर बोल सकते हैं अपन उसको, उसके थ्रू वो सारा डेटा आगे पीछे होता है। तो जो सिक्योर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अपनी बैंक वगैरह हो गई, तो बैंक में तुमने देखा होगा उसमें एक सेशन होता है, अगर वो तुमको ओटीपी आया और उतने उसमें उतना जो टाइम स्पैन है, तो उसमें तुमने ओटीपी सबमिट नहीं किया, तो वो होता नहीं। तो ये जो चीजें हैंडल होती है वो जावा बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। तो ये तो हो गया कितने, ओके, सारे तो हो गए अपने, ओके। हाँ, एचटीएमएल तो देख लेना, क्योंकि वो तो बहुत ही 15-20 मिनट ही लगते हैं एचटीएमएल देखने के लिए, कुछ ज्यादा ऐसा हाई फाई चीज नहीं हो। तो ये तो बस ये आखिरी पोल है कि अभी ये जो आज के 2 सेशन थे उनको कैसे लगे, जैसे मतलब तुम्हारे फीडबैक फॉर्म में तो रहेगा ही है, जैसे वैसा है कि इंटरेक्टिवली दिखे भी कि क्या हो रहा है अभी सब। इसको भी अपन अराउंड कुछ 40 तक रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई भाई, अच्छा है, चलो, सबको पसंद तो आ रहा है। हाँ, ये तुम लोग करते रहना, तब तक कुछ क्यूएनए में कुछ होगा तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, कीप एक्टिव, एकेडमिक्स पार्टिसिपेटिंग। वैसा तो कुछ नहीं, मतलब अभी मोस्टली जो हैकेथॉन्स होते हैं ना, वो लोग का कुछ नहीं रहता, उनका मेन ऐसा रहता है कि तुम कोई तो भी कॉलेज में एनरोल हो, बस, बाकी कुछ नहीं। कुछ कुछ हैकेथॉन जो होते हैं ना, वो सबके लिए ओपन होते हैं, तो तुम कॉलेज में हो, तुम्हारा एज क्या है वो मैटर नहीं करता, बस बस हाँ, उतना ही है। बाकी वो तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बाकी तुमको क्या नॉलेज चाहिए वो प्रोजेक्ट, मतलब वो आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, वो तो वेरी कर सकता है कि तुम कौन से फील्ड में वो हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। एक हैकेथॉन में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना, हैकेथॉन एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। उसमें कुछ एंड्रॉइड वाले हो सकते हैं, एकदम स्पेसिफिक एंड्रॉइड ही चाहिए उनको। कुछ होगा कि उनको ऐसा चाहिए कि क्लाइंट है, फिर वो पीछे से बैक एंड से साथ बात करके कुछ कंप्यूट कर रहे हैं। कुछ हो सकता है किसी को एआईएमएल का होगा। कुछ हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अभी बहुत से चल रहा है, स्मार्ट स्मार्ट चिप्स वगैरह, उसके भी बहुत सारे होते हैं। तो वो हो गया भी, ये सब दिखता है क्या? हाँ, इधर भी, ओके, 50 हो गए।
ओके देन दैट्स ऑल, थैंक्स। ये लास्ट है अभी प्रेजेंट करके रखता। बाकी अगर तुमको मेरे साथ कनेक्ट वगैरह करना है तो ये सारे लिंक से ये जो पीपीटी है ना, इसको भी मैं एक डॉक वगैरह में कन्वर्ट करके तुमको लिंक भिजवा दूंगा, तो तुम वहां से इसको डाउनलोड करके देख लेना बाद, क्योंकि अभी क्या है ना, इसमें थोड़े पोल्स वगैरह के स्लाइड्स भी ऐड करके रखे, तो जब तुम लोग उसको डायरेक्टली पीडीएफ में ओपन करोगे ना तो वो दिखता नहीं है। Okay, then that's all. Thanks. Yeah, guys, you are up. Rohit, could Hello. you please Yes, continue? am I audible? Yes, yes, yes. Yeah, am I audible? Yeah. Yes, you are. So it gives me an image. So Rohit, before you Yeah. start, just a minute. Hello everyone, I'm sharing the feedback form in the general chat. Please feel free to give all your feedbacks, maybe negative or positive. We will surely work on it in our further events. Yes, Rohit, you may continue. So it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the and especially to Suresh and accepting our invitation. I'm sure the juniors must have learned a lot from these sessions, and I mean, they can now decide whether they want to do CP or any ways. So it was really nice that you shared some moments, and thank you. And last but not least, I would like to thank each and everyone present here for attending this session. The attendance form and the feedback form. So that, and thanks for attending this session. Good day. We also have our Discord server link floated in the chat box.